Hello and welcome to JK Rakan. So friends, in this video we are going to discuss the exam preparation strategy of upcoming examination of Sub-Inspector of Jammu and Kashmir Police of 2025. But before moving ahead, let me tell you that the second stage of the selection process of this post, that is the physical standard test and physical endurance test. This stage we have already covered very comprehensively in the previous video. I would like to suggest you please go through that video and resolve all your doubts, and the link of that video is available in the description box. So friends, let us start the discussion. But before that, maybe you have heard the tentative examination date, that is in the month of March 2025. So friends, we shall take this matter into consideration at the end of this video. So now the things that we are going to discuss in this video, number one is the syllabus and the subject wise marks allocation, and on which aspects, on which subjects you need to give more emphasis, the more important topics for your examination. We shall discuss very comprehensively this part, that is number one. Number two, friends, we shall discuss the resources that you can refer for your preparation subject wise. Number three, we shall discuss the previous year question of sub-inspector, that is the previous batch. And last but not the least, we shall cover the current affairs, because you are already aware the domain of the current affair is very large. So on which aspects of current affairs you need to give more emphasis, and the resources of monthly current affairs, which type of topics you need to fetch from the daily current affairs or the monthly current affairs or from the past 1 year current affairs. We shall discuss very comprehensively in this video. So friends, JKSSB has declared two important documents, that is number one is syllabus and two in terms of previous year questions. So you need to fetch the key or the root words from the previous year questions, and then you need to compare with the syllabus. And we shall also compare this current syllabus that you have right now, which is mentioned very explicitly and very clearly by the JKSSB, with the previous syllabus of sub-inspector, that is the previous batch. So friends, now we are moving on the computer screen where we shall discuss all these details one by one. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। तो फ्रेंड्स, ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है जो कि JKSSB की तरफ से रिलीज़ हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपकमिंग आपका जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें आपका कुछ सिलेबस जो है वो इस तरीके से रहेगा। पहले का अगर आप सिलेबस देखें, जो प्रीवियस बैच आपका सब इंस्पेक्टर का रहा है, उसमें आपका ये जो सिलेबस है जो कि आप देख सकते हैं 1 से लेके 14 सीरियल नंबर के एंट्री यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे सिलेबस जो है वो काफ़ी अनडिफाइंड है, और आपका जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस थे वो आपके कुछ पोर्शन से ज़्यादा पूछे गए थे, कुछ पोर्शंस थे जो आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा कम थे। जैसे अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसे कि मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, इन सेक्शंस थे जो क्वेश्चंस थे वो प्रोपोर्शन में काफ़ी कम थे। लेकिन आपकी ये जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी 1 से लेके 6 तक यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और इकोनॉमिक्स के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो पिछले जो आपका बैच रहा है उसमें आपके जो क्वेश्चंस थे वो आपके रैंडमली डिफरेंट टॉपिक से आए थे। कुछ टॉपिक को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी और कुछ टॉपिक्स को कम। लेकिन इस बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बार का आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी डिफाइंड सिलेबस है। अनसर्टेनिटीज़ जो प्रीवियस सिलेबस में थी, काफ़ी अनडिफाइंड सा सिलेबस था, वो इस बार नहीं है। इस बार आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके पहला वाला जो आपका सिलेबस था उसमें आपके टोटल 120 क्वेश्चंस थे और आपका 150 मार्क्स का था। लेकिन इस बार आपका यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके इस बार 100 रहेंगे और आपके मार्क्स रहेंगे 200, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है।
और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, पहले भी आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी, इस बार भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/4 ही रहेगी। यानी कि अगर आपका सही क्वेश्चन होता है तो उसके आपके मार्क्स जो हैं वो 2 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के। अगर गलत हो जाता है तो आपके 0.5 मार्क्स जो हैं वो आपके डिडक्ट किए जाएंगे एज अ पेनल्टी। और कंप्लीट ए से लेके एफ तक जो आपकी सेक्शंस हैं ये आपकी 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे आपको दिए जाएंगे कंप्लीट पेपर को करने के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दें, आपकी ये जो सेक्शंस हैं ए से लेके एफ तक, इसमें ब्रॉडली अगर आप समझें तो आपके पास टोटल यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे। और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिस पे आपको एम्फोसिस करना वो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे। नंबर 1 आपका रीजनिंग, नंबर 2 आपका जनरल अवेयरनेस, और नंबर 3 में हम कंबाइन करेंगे आपका सीरियल नंबर सी और ई यानी कि मैथमेटिक्स। इनकी सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स सी और ई को अगर हम कंबाइन करें 15 और 15 30 नंबर आपके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ के रहेंगे। एक सब्जेक्ट आपका ये बन जाता है। जनरल अवेयरनेस 2 और आपका रीजनिंग 3, चौथा आपका 15 मार्क्स का इंग्लिश, और आपका लास्ट में कंप्यूटर 15 मार्क्स का। तो इन चीज़ों पे फ्रेंड्स आपने ज़्यादा एम्फोसिस करनी है। जैसे कि आपके रीजनिंग हो गई, रीजनिंग में कुछ हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, उन पे आपको ज़्यादा एम्फोसिस करनी है। जो थोड़ी कम वेटेज रखने वाले टॉपिक्स हैं, करने आपने वो भी हैं, लेकिन उनको प्रायोरिटी में आप थोड़ा कम भी रखेंगे तो भी आपका चल जाएगा। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स पे आपने ज़्यादा एम्फोसिस रखनी है। कौन कौन से करंट अफेयर्स आपके रहेंगे, स्टैटिक वाले आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वांट और आपका मैथमेटिक्स एबिलिटी, ये दोनों आपका कंबाइन एक ही सब्जेक्ट है। इस बार इन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक डाल दिया, और मैथमेटिकल एबिलिटीज़ में आपका यहाँ पे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये पोर्शन आपका जो है वो मैथमेटिक्स एबिलिटी में रहेगा। और इंग्लिश में डायरेक्ट आपके जहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं वो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में हम डिस्कस करेंगे कि आपके इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका रिसोर्सेज क्या है, उसके बाद PYQs में जो आपके कीवर्ड्स हैं डायरेक्टली सब्जेक्ट से रिलेट करेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन और 40 नंबर आपको देगी। तो सबसे पहले आपकी रीजनिंग में एम्फोसिस होनी चाहिए। तो रीजनिंग में यहाँ पे ध्यान दें फ्रेंड्स, ऊपर वाला पोर्शन आपका यहाँ पे वर्बल रीजनिंग है और नीचे वाला आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। तो इसमें सबसे पहला है एनालॉजीज़। तो एनालॉजीज़ को जो डिफरेंट टाइप बनती है वो टाइप्स पे आपने ध्यान देनी है। इसके कम से कम कुछ 13-14 टाइप्स हैं जो मैं आपको सोर्स बताऊंगा, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसमें सारी जो एनालॉजी के डिफरेंट टाइप्स हैं वो वहाँ पे कवर की हुई हैं। उसके बाद आपकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, उसके बाद स्पेस विजुअलाइजेशन, उसके बाद स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो फ्रेंड्स ये वाले जो आपके टॉपिक्स हैं ये आपके सारे जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके रहते हैं, जिसमें आपका चेक किया जाता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, देख के उसको कंपेयर करके उसमें डिफरेंसेस से। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस जो हैं बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, इसमें जो आपका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ज़्यादा इसमें रहेंगे रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स के अंदर, जो कि आते ही आते हैं 2-3 क्वेश्चन। अर्थमेटिक रीजनिंग आपको पता होना चाहिए कि एक सीरीज़ टाइप बनती है, उसमें स्क्वायर रूट में आप कुछ ऐड करो या माइनस करो तो आपका नेक्स्ट नंबर कौन सा है। सिमिलरली वो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी तो उसमें डैश में आपको बताना है कि क्या आएगा। सिमिलरली आपका फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आपका ये जो सिलोजिज्म रीजनिंग है इसको भी आपने ध्यान रखना, इसमें से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग है इसमें आप देख सकते हैं नंबर एनालॉजी, ये रिपीट है ऊपर से, फिगरल, सिमनेटिक, उसके बाद सिम्बॉलिक, फिगरल क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज़, फिगरल सीरीज़। तो ये सिमिलर ही आपका कोडिंग, डिकोडिंग सेम, न्यूमेरल ऑपरेशंस। इसमें आपने जो मेन एम्फोसिस करनी है वो आपकी वेन डायग्राम पे होनी चाहिए। वेन डायग्राम से जो क्वेश्चंस बनते हैं
उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। ये आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद पंच्ड होल पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, तो ये वाला टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपका डेट एंड सिटी मैचिंग, ये बेसिक रीजनिंग है, इसमें इजी होता है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका सिंपल हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पोर्शन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है एम्बेडेड फिगर्स। तो एम्बेडेड फिगर ध्यान रखनी है, आपने 4 फिगर आपको दी होंगी, तो उसमें से ऑप्शन में आपको कोई फिगर दे दी होगी जो कि उसमें फिट बैठती होगी, तो एम्बेडेड फिगर की आपने प्रैक्टिस करनी है। आप डायरेक्टली विजुअलाइजेशन से उसको, अपनी विजुअलाइजेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एम्बेडेड फिगर वाला। तो रीजनिंग की आपकी कुछ इस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, टॉपिक वाइज सेलेक्टेड टॉपिक, जैसे ब्लड रिलेशन अगर आप आज प्रिपेयर कर रहे हो तो ब्लड रिलेशन के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको आज करने और अपनी डायरी में नोट करने कि आज आपका ब्लड रिलेशन हो गया। नेक्स्ट दिन अगर आप कोडिंग डिकोडिंग करते हो तो नेक्स्ट दिन फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो डायरी में नोट करना और उसको टिक करना आपने कर दिया। उसके बाद आप जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी आपकी कमांड बनेगी क्वेश्चंस पे। तो प्रैक्टिस के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ बैकअप के लिए अपना रखा होगा, टेस्ट सीरीज़ आपने ले रखी होंगी। जब आप तैयारी कर लोगे तो वहाँ पे फिर आपको तैयारी अपनी वहाँ पे प्रूफ करनी है प्रैक्टिस कर करके। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जनरल अवेयरनेस, इसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स रहेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगी। इसमें काफ़ी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स आते हैं लेकिन आपने उनकी गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि आपने उसमें कोई हायर स्टडीज़ या फिर कोई मास्टर्स नहीं करनी है। आपको डायरेक्टली वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपको डायरेक्टली चीज़ें पता होनी चाहिए। टाइम, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए, स्टोन एज से एंशियंट हिस्ट्री आपकी, उसके बाद एंशियंट के बाद मेडिवल में कौन कौन से एम्पायर्स रहे, उसके बाद आपका कैसे ब्रिटिश एम्पायर आया मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ये सारी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस सेक्शन में आपका पर्टिकुलरली रहेगा क्वेश्चंस इस तरीके से यहाँ पे रहेंगे ताकि आपका जनरल अवेयरनेस, आपके आसपास क्या हो रहा है जो कि आपकी सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल रहता है, तो सारी चीज़ें इसमें आपकी बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड आती हैं। करंट अफेयर्स डे टू डे हमारी स्टेट में क्या चल रहा है, पॉलिटिकली आपका इकोनॉमिकली क्या चल रहा है, उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स में हमारी डिफरेंट जो समिट्स हो रही हैं, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपका इकोनॉमी में रहेगा, वो हम डिस्कस करेंगे जब इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में हम आएंगे। तो इसका जो आपका सोर्स मैं आपको बताऊंगा वो आपने बिल्कुल अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है वो वहाँ से बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने पहले से कभी भी स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी टच भी नहीं किया तो भी आपकी वहाँ से चीज़ें जो हैं वो कवर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने कर रखी हैं तो वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स पे आपकी मेन एम्फेसिस होनी चाहिए। मंथली करंट अफेयर्स, डेली बेसिस पे आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना ताकि आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएं, वो हम रिसोर्सेज वाले कंपोनेंट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सी और ई सेक्शन हम कंबाइन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपका मैथमेटिक्स ही है। टोटल 30 क्वेश्चंस आपके सी और ई कंबाइन होके आपके रहेंगे और आपके टोटल 60 मार्क्स रहेंगे 30 क्वेश्चंस के। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसको अगर आपने आज तक कभी भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ नहीं निकाला है तो आप होल नंबर से शुरू कर सकते हैं। होल नंबर, डेसिमल, ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो आपका है, ये आपका बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन इतनी भी नहीं है कि आप उसको देख के सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस उसके लिए चाहिए। बोर्ड मास का कंसेप्ट उसमें लगता है, फ्रैक्शन डेसिमल्स के क्वेश्चन आपको निकालने पड़ेंगे तब जाके आपके निकलें, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट होता है, HCF, LCM, आपको कॉन्सेप्ट लगा के वहाँ पे सॉल्व करना होता है। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये वाली अगर हम बात करें, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शंस, उसके बाद स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन परसेंटेज से बनते हैं, रेशो प्रोपोर्शन से बनते हैं, एवरेज का पक्का क्वेश्चन होता है, इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आना ही आना है, डिस्काउंट से, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन थोड़ी कम प्रायोरिटी का लेकिन ये भी आपने करना है, मिक्सचर एलिगेशन से भी क्वेश्चन, और उसके बाद टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे PYQs में भी किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इन सेक्शन से बने हैं। तो अगर आपने पहले से क्वांट कर रखा है तो मेरी
आपसे यही सुजेशन रहेगी कि सबसे पहले आप जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा एम्फोसिस करें, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आपकी ऑलरेडी कमांड होगी। उसके बाद सिमिलरली अगर हम मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो इसमें पहला है अलजेब्रा। तो अलजेब्रे में बेसिक जो आपकी आइडेंटिटीज़ रहती हैं, बेसिक आइडेंटिटीज़ आपको यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम जो आपकी लीनियर इक्वेशंस की रहती हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं, फिर ग्राफ में आपको वैल्यू दे दी होगी, उसमें से आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो एलिमेंट्री ज्योमेट्री फिगर्स से रिलेटेड आपको बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर, मतलब ट्रायंगल के सेंटर्स जो आपके रहते हैं वो किन डिफरेंट टाइप से फाउंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रायंगल की सिमिलरिटी और कॉन्क्यूरेंसीज के जो रूल्स होते हैं उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन रहेंगे। और ये वाला जो पोर्शन आपका सर्कल एंड इट्स कॉर्ड, टेंजेंट, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉमन टेंजेंट टू सर्कल और मोर सर्कल, यहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस बनेंगे। इस पे आपने ज़्यादा एम्फोसिस करना है, क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपके बनेंगे। मेंसुरेशन में भर के क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहेंगे, ट्रायंगल से, क्वाड्रिलेटरल से, रेगुलर पॉलीगन से, सर्कल से, उसके बाद आपका राइट प्रिज्म, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर। तो ये वाला जो आपका पोर्शन है वो एब्सोल्युटली आपका फार्मूला बेस्ड रहेगा। वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये चीज़ पे आपने ज़्यादा एम्फोसिस करना है। फार्मूला बेस्ड, फार्मूला आपको अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन आपका डायरेक्टली यहाँ पे निकल जाएगा। तो फार्मूले पे आपको ज़्यादा एम्फोसिस करना है इस वाले पोर्शन में, मेंसुरेशन। सिमिलरली आपका ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी है उसमें भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है वो आइडेंटिटी बेस्ड रहते हैं, साइन, कॉस, टैन, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कॉट, सेक, कोसेक, ये आइडेंटिटीज़ आपको पता होने चाहिए। आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो उसको अरेंज करके आप कैसे ट्रायंगल को यूज़ करके आप इनकी सभी की वैल्यूज़ जो है वो निकाल सकते हैं, साइन 30, 60, 45। तो ये आपको निकालना आनी चाहिए। सिंपल प्रॉब्लम क्वेश्चन आपके यहाँ से रहेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आप बिल्डिंग के सामने खड़े हो, जहाँ से आप देख रहे हो अपनी बिल्डिंग की टॉप वाली साइड को, वहाँ से आपका एंगल गिवन रहेगा। आपको पूछ लिया जाएगा कि आपका डिस्टेंस बिल्डिंग से कितना है, बिल्डिंग की हाइट आपको दे दी जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बताने हैं वहाँ पे सॉल्व करके, बिल्कुल सिंपल सा। आपको एक ट्रायंगल बनानी है, तो ट्रायंगल में आपको एंगल बताना है, हाइट आपको गिवन होगी, तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल बेसिक जो आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो आपको सॉल्व करनी है। सिमिलरली आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाला जो पोर्शन है, इसमें आपको मेन एम्फोसिस करना है बार डायग्राम और पाई चार्ट में। यहाँ से आपके डायरेक्टली आपका जो डेटा है वो रिप्रेजेंट किया होगा ग्राफ्स के द्वारा, बार डायग्राम, पाई चार्ट। तो इसमें आपको डायरेक्टली समझना है कि डेटा में क्या कह रहा है वो, और क्वेश्चन आपका किस तरीके से निकलना है। आपको डायरेक्टली वहाँ पे समझना है क्वेश्चन को, और वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ से मिल जाएगी। सिमिलरली आपको टेबल्स का यूज़, ग्राफ्स का यूज़, यानी कि डेटा प्लॉट किया होगा टेबल में, ग्राफ में, हिस्टोग्राम। तो मेन आपको एम्फोसिस करनी है इसमें बार डायग्राम और पाई चार्ट में। सिमिलरली उसके बाद जो आपको गिवन डेटा होगा उसका मीन कैसे निकालना है, मीडियन, मोड, इस पर आपको एम्फोसिस करना है। इनके फॉर्मूलाज होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें उसके पहले आपको वेरिएंस निकालना होता है, तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। और उसके बाद आपका यहाँ पे रहता है प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी के आपके जो क्वेश्चन रहते हैं, कॉइन का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, उसकी कैसे आपको सैम्पल स्पेस निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, कार्ड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी है। इन सभी के सोर्सेज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपकी सेक्शन है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, और इसमें आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स आपके यहाँ पे रहेंगे। तो कंप्यूटर में आपको सबसे पहले सोर्स में आपको बताऊंगा, काफ़ी अच्छा सोर्स अगर आप पढ़ लोगे कंप्यूटर वहाँ से तो इसमें आपका बेसिक्स कंप्यूटर में सबसे पहले आपको जो जनरेशन है कंप्यूटर की, कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ, आज हमारे पास जो कंप्यूटर है वो पहले कैसा था जब इन्वेंट हुआ था, डिफरेंट जनरेशन में क्या मॉडिफिकेशंस आई, वो आपको पता होना चाहिए। वहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं वो पता होने चाहिए, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस वाले पोर्शन का एम्फोसिस करना है आपने। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, हर बार एक दो क्वेश्चन आपका जो है JKSSB के एग्ज़ाम में, जहाँ पे भी कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द आपके जो एग्ज़ाम होते हैं JKSSB के, उसमें आपका कंप्यूटर होता ही है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से एक दो क्वेश्चन आपका रहता है। कंप्यूटर की मेमोरी के जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और बैकअप डिवाइसेस, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद पोर्ट्स, विंडोज़ एक्सप्लोरर और कीबोर्ड शॉर्टकट्स। इसमें आपका इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है कीबोर्ड की जो शॉर्टकट्स होती हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे आपको एम्फेसिस करना है। सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका ये जो MS ऑफिस है, MS ऑफिस में आपको सारा करना है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका रहेगा, इस पे आपको एम्फेसिस करना है। उसके बाद इसको भी आपने गो थ्रू करना है, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, ये बेसिक्स है, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, तो बेसिक नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स आपको पता होने चाहिए, नेटवर्क की बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इंटरनेट में वो आपको पता होना चाहिए। हैकिंग, वायरस, डिफरेंट टाइप का वायरस, वॉर्म क्या, टॉर्जन क्या, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको पता होना चाहिए। और प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स कहने का मतलब है कि वायरस से बचने के लिए, हैकिंग से बचने के लिए, वॉर्म से बचने के लिए और टॉर्जन से बचने के लिए, और आज के टाइम पे जो आपके साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं। रिसेंट अगर मैं आपको बताऊं तो 5000 जो आपके साइबर कमांडोज हैं उनको ट्रेन करने की बात चल रही है आने वाले 5 साल में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है प्रीवियस ईयर 2024 में। तो ये बेसिक आपको पता होने चाहिए। और नेशनल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्टिंग पोर्टल है जहाँ पे आप साइबर अगर कोई फ्रॉड हुआ तो वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो वो बेसिक आपको पता होना चाहिए, कहीं से अगर MCQ आपका बना तो आपका निकल जाना चाहिए, एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया रहे। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि A, B और D यानी कि आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आपकी जो इंग्लिश है ये आपकी रहेगी ग्रेजुएशन लेवल की। और CEF, C यानी कि आपका मैथ, E भी आपका मैथ और F आपका कंप्यूटर, ये आपका बेसिक रहेगा। 10th लेवल के क्वेश्चंस आपके ये रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये था सिलेबस, हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बिटवीन द लाइन आपको क्लैरिटी हो गई होगी। और अब आपकी एक सेक्शन यहाँ पे बचती है सिलेबस में, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 15 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 30 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। तो अगर आपने आज तक इंग्लिश, तो ऑब्वियसली बात आपने पढ़ी होगी, लेकिन अगर आपने कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आज तक नहीं पढ़ी है तो आप ग्रामर से अगर शुरू करेंगे तो ग्रामर में ही आप कंफ्यूज होते रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश में आपको एज सच कोई मास्टर या फिर कोई हायर एजुकेशन नहीं करनी है, आपको बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो इंग्लिश आप सबसे पहले वोकैबलरी शुरू करें। वोकैबलरी आई मीन टू से दैट कि आपको बेसिक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, उसके सेम मीनिंग्स और कौन कौन से होते हैं, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। उसके बाद आपको जो वर्ड आप देख रहे हो उसको स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। मिस स्पेल्ड वर्ड अगर दिया गया हो तो उसके सही क्या है वो आपको पता होने चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, जैसे एकोमोडेशन के उनको एग्जैक्ट पता नहीं होते कि स्पेलिंग क्या है, वैक्यूम के नहीं पता होते। तो ये अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, चीज़ों को अपने माइंड से लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी कमांड जो है वो इन चीज़ों पे बनेगी। एडियम्स एंड फ्रेजेस, अगर आप इंपॉर्टेंट एडियम्स एंड फ्रेजेस 250-300 करते हो तो यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। गो थ्रू करना है ताकि आपके माइंड में रहे, जैसे ही क्वेश्चन आए आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये वाले जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट पोर्शन बताएं, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बनने हैं। आप डायरेक्टली अगर इनकी PDF से भी अगर करोगे तो आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद सेकंड आपके पास आता है ग्रामर। तो ग्रामर के जो रूल्स हैं वो आप बाद में शुरू करें, जिससे कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर
वर्ब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे, प्रेपोजिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपके वहाँ से कवर होंगे। शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, तो वो वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ग्रामर वाला पोर्शन भी आपको साथ साथ में लेके जाना है ताकि आपके वो क्वेश्चंस भी कवर हो। लेकिन अगर आप शुरू में ही इंग्लिश को ग्रामर से शुरू करेंगे तो आपके लिए बोरिंग ना रहे, तो इसलिए आप ये वाला पोर्शन जो शुरू करेंगे जो आपको बताया, तो आपका इंटरेस्टिंग रहेगा। साथ साथ में आप अपनी ग्रामर भी डेली बेसिस पे कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा, यानी कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा, वहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ से आपको आंसर ढूंढने हैं। तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट करने के लिए आपको 3 या फिर उससे ज़्यादा पैराग्राफ आ सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें से कम एक पैराग्राफ जो होगा वो आपका एक बुक या फिर किसी स्टोरी पे होगा, और दूसरे जो आपके पैराग्राफ होंगे, जो कि 2 रहेंगे रिमेनिंग, वो आपके रहेंगे करंट अफेयर्स के बेसिस पे। यानी कि कोई रिसेंट टॉपिक अगर चल रहा है करंट अफेयर्स में, जैसे एडिटोरियल आते रहते हैं द हिंदू पे, तो वहाँ से आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पे दिया हुआ है 2 आपको वहाँ से कॉम्प्रिहेंशन आने हैं, वो पैसेज पढ़ने हैं, वहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन निकलेंगे। तो आप आज से ही अपनी इंग्लिश की तैयारी के लिए जो है अपनी द हिंदू जो है उसकी हेडलाइंस पढ़ना शुरू कर दें। उससे आपकी काफ़ी अच्छी कमांड जो है वो स्पेलिंग पे भी बनेगी, आपका पैसेज भी इम्प्रूव होगा, नए नए वर्ड्स भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस से भी आपको नए नए वहाँ पे मिलेंगे, एरर भी आप स्पॉट कर पाओगे अगर आप साथ साथ में ग्रामर करोगे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी आपके वहाँ से कवर होंगे। तो इसका बड़ा अच्छा सोर्स मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश का, पीडीएफ से आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका कंप्लीट सिलेबस था। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो कि आपका रहेगा सब्जेक्ट वाइज आपके सोच।